What's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Tuesday, 18th of November and today we had Nifty's weekly expiry. And 26,000 level is proving to be a very good resistance for Nifty जब भी मार्केट 26,000 लेवल को हिट कर रहा है, चाहे वो गैप अप के कारण फर्स्ट टिक पे 26,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा हो या इंट्राडे में मार्केट्स क्लाइम करके 26,000 लेवल को हिट कर रहा हो, the sellers are getting activated and the markets are getting sold into. Even today, the markets tried to stay above 26,000 levels twice. One, the markets opened somewhere around 26,000 levels, but right at the opening tick, first minute के अंदर एक 100 पॉइंट का सेल ऑफ देखने को मिला. And again, in the noon, the markets tried to take out 26,000 levels, but again, market ने 26,000 level से एक 100 point का dip दिखाया. We did discuss in the yesterday's analysis video that 26,000 will act as some sort of a magnet and markets का जो expiry आज होने वाला था वो somewhere around 26,050 and 25,900 के बीच होने वाला है and the market somewhere expired somewhere around 25,900 levels. And the intraday range is also appearing to be shrinking. 3 हफ्ते से लगातार intraday range था somewhere around 200 to 250 points, but आज भी market एक 150 point के अंदर ही फंसा रहा markets. And considering how the expiries have been lately, today's expiry was relatively pretty calm. The straddle opened with somewhere around 120 and the market stayed in 120 point range. Of course, 120 point नीचे आया and 120 point ऊपर आया. Of course, the markets did show some sort of a volatility within a small range, but I think today's expiry was quite manageable by short gamma players. And surprisingly, post 2 p.m, the gamma was kind of absent today. Apart from 1 or 2 instances where the puts kind of tripled, the gamma was pretty much absent throughout the day. So let's get to the terminal and let's analyze what the markets are saying for tomorrow's trading day. All right. So 26,000 level is proving to be a very hard resistance. Even on a daily chart आप देख सकते हैं कि आज 26,000 level के आसपास ही markets open हुए, but in spite of that we saw some sort of a red Marubozu candle. तो directly 26,000 लेवल पे ओपन भी होता है तो मार्केट्स आर गेटिंग सोल्ड इनटू. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना टच पॉइंट्स है, 1 2 3 4, कल का 5 एंड आज का 6. ऑलमोस्ट 6 times द सेलर्स आर गेटिंग एक्टिवेटेड अराउंड 26,000 लेवल्स एंड वहां से मार्केट्स को सेल ऑफ कर रहे हैं एंड टुडे वाज द सेम. एंड लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो येस, टुडे वाज रिलेटिवली अ साइलेंट एक्सपायरी, बट द फर्स्ट 5 minute कैंडल इटसेल्फ वाज a big range candle. So 26,000 के ऊपर markets open हुआ था and everybody expected that continuation एक momentum मिलेगा, but within the first 1 or 2 minutes the markets proved everyone wrong. So within the first 5 or 10 minutes the markets saw almost around 80 points का एक dip देखने को मिला and after that the markets broke this level as well. एक yesterday का low भी मतलब तोड़ा, but यहाँ पे एक वर्जिन सीपीआर था तो वर्जिन सीपीआर से मार्केट एक शार्प बाउंस दिखाया एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक डब्ल्यू टाइप ऑफ पैटर्न भी फॉर्म हुआ था, एक जैसे नेकलाइन टूटा, इवन आई काइंड ऑफ वेंट अ लिटिल बुलिश, बट उसके बाद ऑल द गेन्स आई हैड टू गिव बैक इन दिस फॉल. बट नॉनदलेस आई हैड अ डिसेंट एक्सपायरी, अराउंड 0.5% प्रॉफिट बुक किया है. बट दिस फॉल वॉज काइंड ऑफ अनएक्सपेक्टेड बिकॉज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब 2 o'clock के आसपास 1:30 के आसपास ये जो ब्रेकआउट देखने को मिला, आई वाज एक्सपेक्टिंग द मार्केट्स टू हेड हायर एंड गिव सम सॉर्ट ऑफ अ पेन फॉर द ऑल द कॉल राइटर्स बिकॉज कॉल राइटर्स सुबह से ही काफी आराम से बैठे थे. अपार्ट फ्रॉम दिस फेज the calls में ज्यादा स्पाइक देखने को नहीं मिला, so I was expecting some sort of a pain for call writers because put writers को तो मार्केट ने सुबह सुबह ही पेन दे दिया था, तो I was expecting this but that didn't materialize. But nonetheless it was a decent amount of expiry and यहाँ पे भी जो गामा मूव आया it was only towards the put side. ऐसे दोनों तरफ पहले कॉल को ट्रिपल किया, नेक्स्ट पुट्स को ट्रिपल किया, फिर से कॉल को ट्रिपल किया, ऐसे मूव्स नहीं थे आज, तो it was kind of a smooth expiry. But अगर स्ट्रैडल की बात करें तो येस, वी ओपन समवेयर अराउंड 120 के आसपास हमने ओपन किए थे, यहाँ पे 120 के आसपास ओपन किए थे एंड आफ्टर द फर्स्ट 10 or 15 minutes ऑफ डीके द स्ट्रैडल काइंड ऑफ हेल्ड इट्स वैल्यू, ऑलमोस्ट 1 hour तक एक स्ट्रैडल वैल्यू को होल्ड किया समवेयर अराउंड 100 एंड उसके बाद इट वाज लाइक अ वन वे जर्नी. तो यहाँ पे बीच में 250 के आसपास एक स्पाइक देखने को मिला, दैट इज व्हेन दिस ब्रेकडाउन हैपेंड. यहाँ पे एक जो ब्रेकडाउन आपको देखने को मिला 3 o'clock के आसपास, दिस ब्रेकडाउन, बिकॉज एवरीबडी वुड हैव सोल्ड स्ट्रैडल्स विथ दिस लेवल एज सम सॉर्ट ऑफ अ सपोर्ट एंड जब ये सपोर्ट टूटा तो देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ अ रीप्राइसिंग दैट हैपेंड इन द स्ट्रैडल्स, बट इट वाज नॉट काइंड ऑफ अ वॉल रीप्राइसिंग, इट्स बिकॉज ऑफ लाइक शार्प गामा. बट नॉनदलेस इट वाज अ डिसेंट एक्सपायरी डे. अगर कल की बात करें तो फर्स्ट लेट्स एनालाइज सेंसेक्स की वॉल्स. तो यू कैन नोटिस दैट अराउंड 600 पॉइंट्स का स्ट्रैडल है एंड 600 पॉइंट्स टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट ग्रेट फॉर
for a 2 DTE close because कल सेंसेक्स की 1 DTE है and most probably will be opening somewhere around 550. तो 550 का अगर कल ओपन मिलता है सेंसेक्स के स्ट्रैडल्स पे, then we can hardly expect somewhere around 100 points of क्रश थ्रू आउट द डे. तो 100 पॉइंट्स का क्रश के लिए प्योर डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड करना मेरे लिए इतना ठीक नहीं लगता है, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट लास्ट 2 या 3 दिन से वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन हुई है. आप निफ्टी का भी अगर मैं कल की वीडियो से मैं बता रहा हूं कि निफ्टी का जो रेंज है 150 पॉइंट के रेंज के अंदर है, विच इज काइंड ऑफ रिलेटिवली लो कंसिडरिंग ओवर द लास्ट 2 months ऑफ रेंजेस. तो कल अगर एक वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन हो जाता है देन वी माइट बी गेटिंग स्टक इन आवर नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स ऑन सेंसेक्स. तो कल का सेंसेक्स कैसे ट्रेड करना है, तो उसके लिए हम वापस चार्ट पे आ जाते हैं, प्राइस एक्शन चार्ट पे. एंड ऑफ कोर्स तो मैक्सिमम जो वो ओपन इंटरेस्ट है वो समवेयर अराउंड 84,500 के आसपास ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है एंड 85,000 के कॉल्स मैक्सिमम ज्यादा शॉर्ट्स है. सो टुमारो कहाँ पे ओपन होता है उसके ऊपर अगेन हमारा जो है ट्रेडिंग डिसाइड होती है. तो अगेन दिस विल एक्ट एज सम सॉर्ट ऑफ अ सप्लाई फॉर टुमारो, बिकॉज इफ मार्केट 26,000 को अगर एक और बार निफ्टी ने 26,000 लेवल को क्रॉस नहीं करता है देन देयर इज अ हाई चांस दैट जो मंथली एक्सपायरी आ रही है 25 नवंबर पे, 25 नवंबर को निफ्टी ने एक शॉर्ट कवरिंग रैली के साथ 26,000 लेवल को तोड़ सकता है. बट एट द सेम टाइम द मार्केट्स शुड आइडियली हॉवर बिटवीन 25,700 एंड 26,000 लेवल्स. तो इसके नीचे इसके बीच में ही रहना है, 26,000 एंड 25,700 के बीच में रहना है. तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन द मंथली एक्सपायरी दैट वी माइट बी एबल टू सी सम सॉर्ट ऑफ अ शॉर्ट कवरिंग रैली. बट अगर 25,700 के नीचे अगर निफ्टी स्लिप हो जाता है देन मतलब बायर सेलर्स थोड़ा कंट्रोल में आ जाता है एंड इट्स वेरी हार्ड फॉर द मार्केट्स टू क्लाइंब ऑलमोस्ट 450 पॉइंट्स इन स्पैन ऑफ लेस देन 2 days पोस्ट फ्राइडे. ठीक है, तो कल के लिए अगर मार्केट फ्लैट या थोड़ा बहुत गैप अप खुलता है देन एक अच्छा रेंज खुल जाता है मार्केट्स के लिए. फॉर एग्जांपल हमारे पास 550 पॉइंट का एक स्ट्रैडल मिलता है. सो CTM strangles would make sense between these two levels, 84,500 and 85,000, around 500 point के रेंज में. This can be managed in my opinion. But अगर मार्केट इस एंड के अगर आसपास खुल जाता है then there is a probability that यहाँ पे एक कंसोलिडेट करके ऊपर का तरफ ब्रेकडाउन दे दे. बट अगर एक गैप डाउन दिख जाता है then ये जो लेवल्स है these will act as resistance for tomorrow and this will definitely act as a support. यहाँ पे वॉल्यूम के साथ एंड एक न्यूज ड्रिवन का जो कैंडल है तो वी माइट बी इवन टेस्टिंग दिस लो. यहाँ पे अगर लो टेस्ट करके एक डबल बॉटम काइंड ऑफ अ पैटर्न बना के यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है. बट इफ अट ऑल मार्केट एक बड़ा गैप डाउन खुलता है देन मेरे लिए फिर से एक रेंज डे ही बन जाएगा एंड द रेंज इज बिटवीन समवेयर अराउंड 84,600 से लेके 84,000. सो टुमारो इन बोथ द केसेस the range is somewhere around 500 points, but I am expecting some sort of a violent move. Market is 500 point range को 1, 2, 3 बार टच करने का probability है. So that is why even though the range is kind of supporting considering how the straddles are priced, I'll still take some sort of a mean reversion trades. तो कल का mean reversion trades ये बन सकता है मेरे लिए इस लेवल पे, this level पे I'll definitely go for some ATM put shots या some credit spreads के थ्रू ही मतलब मैं put short करने वाला हूँ. And if at all the market comes at this level, इस लेवल पे I'll take a small naked call shots with a small stop loss and यहाँ पे मेरा एक stop and reverse kind of a trade रहने वाला है. stop and reverse kind of a trade मतलब मैं यहाँ पे first जब market एक first approach देगा especially like with a lot of travel, अगर market बहुत ज्यादा travel करके इधर से इधर तक travel करेगा then of course there will be a lot of longs who will be trying to book their profits and I'll use that place to kind of short the markets. But अगर यहाँ से मेरा stop loss trigger हो जाता है then I'll reverse my position and I'll go long. But on the short side, let's say यहाँ पे ओपन होता है एंड मार्केट्स इस लेवल पे आ जाता है, ये लेवल पे आ जाता है, देन I'll of course initiate some sort of a bullish trade. बट यहाँ पे स्टॉप लॉस गया तो गया एंड उसके बाद में फिर से डायरेक्शन में रिवर्सल डायरेक्शन नहीं लेता हूं बिकॉज मेरे लिए मार्केट्स आर स्टिल न्यूट्रल टू बुलिश. सो ये मेरे लिए 3 सिनेरियो है. बट अगर एक बड़ा अगर एक बड़ा गैप अप खुल जाता है देन काइंड ऑफ आउट ऑफ सिलेबस काइंड ऑफ अ प्राइस एक्शन. सो ऑफ कोर्स आई लेट द डे डेवलप. पहले 40-45 मिनट्स का जो प्राइस एक्शन है वो डेवलप होने देते हैं एंड उसके बाद उस इनिशियल बैलेंस का जो ब्रेकआउट को हम ट्रेड कर सकते हैं इन बोथ द डायरेक्शंस. बट आई वुड
I'd be more inclined to trade the breakout on the upside rather on the downside, because I'm using, मेरे लिए मार्केट लाइक बाय ऑन डिप काइंड ऑफ अ मार्केट है, तो आई विल बी लेटिंग द मार्केट्स टू कम नियर माय सपोर्ट्स एंड प्राइस मुझे अच्छा लगा तो वहां से मैं एक मीन रिवर्शन ट्रेड ले सकता हूं. बट ऑन द कॉल साइड, यस ऑफ कोर्स, अगर मार्केट ने इंट्राडे में अगर जर्नी ज्यादा दिखाई तो ऑफ कोर्स एक वन डायरेक्शनल मूव आता है, तो ऑफ कोर्स यहाँ से जो लॉन्ग्स इनिशिएट किए हैं उन सब लोगों का एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आ सकता है, एंड देन देर माइट बी सम सॉर्ट ऑफ अ डिप, एक मीन रिवर्शन ट्रेड बनता है. बट इवन इफ माई स्टॉप लॉस गोज, I will not regret and I'll immediately change the direction on the call side. But on the put side, definitely I'll only take a mean reversion trade, and agar stop loss hit karta hai, then the change of direction is not in my plan. All right. So that's my plan, guys. And I'll see you guys again tomorrow after the markets. And I'll see you guys till then. Take care. Bye-bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.